بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شہزادیہ نازیہ کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے ایک خوفناک انسان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں تو ایک عام انسان نظر آ رہا تھا، مگر اس کا قد عام انسانوں سے دگنا تھا۔ اس کا رنگ بھی سنہری مائل تھا، پچکی ہوئی ناک، اور سب سے زیادہ خوفناک اس کے سر کے بال تھے، جو سرکنڈوں کی طرح اس کے سر پر پورے جنگل کی مانند اگے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے سر پر پرندوں کا ایک بہت بڑا گھونسلہ ہو۔ وہ شہزادی انازیہ کے سامنے کھڑا اس کی جانب خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ شہزادی انازیہ اس خوفناک انسان کو خواب میں پچھلی کئی راتوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر روز خواب میں دیکھتی کہ وہ ایک کمرے میں تن تنہا سونے کے تخت پر سو رہی ہوتی ہے کہ یکلخت اس کے کمرے میں عجیب سی چرچرانے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پھر اچانک کمرے میں چند نیلے رنگ کے انسانی کھوپڑیاں نمودار ہوتی ہیں۔ ان کھوپڑیوں کی آنکھوں کے سوراخوں سے تیز زرد رنگ کی روشنی سی پھوٹتی دکھائی دیتی ہے، اور پھر ان میں سے ایک کھوپڑی میں شہزادی کے پلنگ کے اوپر آ کر معلق ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی زرد روشنی شہزادی کے جسم پر پڑتی ہے۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی انازیہ یوں اٹھ بیٹھتی ہے جیسے اسے اچانک کسی نے پکڑ کر اٹھا دیا ہو۔ اس کی آنکھیں بدستور بند ہوتی ہیں۔ اسی وقت دوسری کھوپڑیاں آنکھوں سے اس پر زرد روشنی پھینکتی ہوئی اس کے پلنگ کے اوپر گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے وہاں ایک وہی بڑے بڑے بالوں والا خوفناک انسان کہہ لگاتا ہوا نمودار ہوتا ہے، اور ہوا میں تیرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر شہزادی کی جانب بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ شہزادی کو پکڑنا چاہتا ہے، اس کی تیزی سے آگے بڑھنے کی وجہ سے شہزادی کے بال اڑتے ہیں۔ اسی وقت ہر طرف تیز روشنیاں چمکتی ہیں، اور وہ خوفناک انسان چیخیں مارتا ہوا وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ کھوپڑیاں جن کی آنکھوں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، یکے بعد دیگر غائب ہو جاتی ہیں، مگر ان میں سے ایک کھوپڑی جلتی ہوئی زمین پر آ گرتی ہے، اور زمین پر گر کر آگ میں جلتی ہوئی اس بری طرح سے چیخیں مارتی ہوئی تڑپتی ہے جیسے اس میں جان ہو۔ اس کی چیخیں سن کر یکلخت شہزادی کو ہوش آ جاتا ہے، اور وہ جھٹ سے آنکھیں کھول دیتی ہے، اور پھر نہایت خوفزدہ انداز میں کمرے کو دیکھتی ہے، مگر اسے وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ کمرے کے وسط میں جلے ہوئے کوئلے کے ٹکڑے ضرور بکھرے ہوتے ہیں۔ پہلے تو شہزادی نے اسے اپنا خواب سمجھا، مگر جب مسلسل اسے 2-3 روز یہی خواب آتے رہے تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ روزانہ خواب میں اسے وہی کھوپڑیاں اور وہی خوفناک انسان دکھائی دیتا، اور وہ خوفناک انسان جو ہی ہوا میں تیرتا ہوا ہاتھ پھیلا کر اسے پکڑنے کے لیے اس کی جانب آتا، اس کے بکھرے ہوئے بال اڑنے لگتے، اور دوسرے ہی لمحے وہ خوفناک انسان چیخیں مارتا ہوا وہاں سے غائب ہو جاتا، اور کھوپڑیاں بھی غائب ہو جاتی، مگر ان میں سے ایک کھوپڑی جل کر زمین پر گرتی اور کوئلہ ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادی انازیہ پچھلے کئی روز سے پریشان تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے مسلسل کئی روز سے یہ خوفناک خواب کیوں آ رہے ہیں۔ وہ سرکنڈوں کے بالوں والا خوفناک انسان کون ہے، اور وہ کھوپڑیاں کیسی ہیں جن کی آنکھوں سے روشنی پھوٹتی ہے۔ خوفناک انسان اسے کیوں پکڑنا چاہتا ہے، اور پھر یوں اچانک چیخیں مارتا ہوا کیوں غائب ہو جاتا ہے، اور پھر ایک کھوپڑی جل کر کوئلہ کیوں ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے اس خواب کا تذکرہ اپنی سہیلیوں اور والدین سے کیا تو انہوں نے شہزادی انازیہ کو اس کا محض وہم سمجھا۔ شہزادی انازیہ نے ان سے کہا کہ یہ اس کا محض وہم نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے، وگرنہ ہر روز مسلسل ایک ہی خواب نظر آئے یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک روز وہ اپنی ہمجولیوں کے ہمراہ پائے باغ کی سیر کر رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ شروع میں ہوا اتنی تیز نہ تھی، مگر آہستہ آہستہ اس ہوا نے آندھی کا روپ دھار لیا۔ شہزادی انازیہ اور اس کی ہمجولیاں آندھی دیکھ کر گھبرا کر محل کی جانب بھاگی، مگر اسی وقت فضا میں ایک تلسمی پنجہ نمودار ہوا، اور اس نے جھپٹ کر شہزادی انازیہ کو پکڑ لیا۔ شہزادی انازیہ کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی ہمجولیوں نے اس کی جانب دیکھا، اور پھر وہ شہزادی کو ایک خوفناک پنجے کی گرفت میں دیکھ کر خود بھی بری طرح سے چیخ اٹھی۔ پنجے نے شہزادی کو اٹھایا اور نہایت تیز رفتاری سے اسے لے کر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ شہزادی انازیہ اس بری طرح چیختی جا رہی تھی جیسے اسے زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی چیختی چلاتی رہی، پھر دہشت زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے کمرے میں ایک خوبصورت پلنگ پر لیٹے پایا۔ شہزادی انازیہ حیران نظروں سے اس کمرے اور پلنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کمرے کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی یہ کون سی جگہ ہے، اور اسے یہاں کون لایا ہے۔ پھر اچانک اسے اس تلسمی پنجے کا خیال آیا۔
जो उसे अचानक उठाकर आसमान की जानिब बुलंद हो गया था। तिलस्मी पंजे का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर खौफ ओत कर आया। वो घबरा कर जल्दी से पलंग पर से उतरने लगी, मगर आयन उसी वक्त चुट-चुट की तेज आवाज सुनकर वो बुरी तरह से चौंक उठी। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। ठीक उसी लम्हे यके बाद दीगर 5 जमाके हुए और कमरे में 5 नीले रंग की अजीबो-गरीब इंसानी खोपड़ियां नमूदार हुई। उन खोपड़ियों की आंखों के सुराखों से दर्द रंग की तेज रोशनी फूट रही थी। शहजादी अनादिया उन खोपड़ियों को देखकर बुरी तरह से चौंक उठी। ये तो वही खोपड़ियां हैं जिसे वो मुसलसिल कई रोज से ख्वाब में देखती आ रही थी। तो क्या वो इस वक्त भी ख्वाब देख रही है? शहजादी अनादिया ने खौफनाक निगाहों से खोपड़ियों की जानिब देखते हुए सोचा। उसने जल्दी से अपनी उंगली दांतों में चबाई तो उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। तो इसका मतलब है कि वो इस वक्त ख्वाब में नहीं हकीकत देख रही थी। जो बातें वो ख्वाब में देखती आ रही थी वो आज हकीकत के रूप में उसके सामने था। खौफ की ज्यादती से उसका खून खुश्क हो गया। नील खोपड़ियां फिजा में गर्दिश करती हुई शहजादी के पलंग के ऊपर तेजी से रक्स करने लगी। उनमें से एक खोपड़ी जो दूसरी खोपड़ियों से कदरे पड़ी थी, शहजादी अनादिया के सामने फिजा में मुअल्लिक हो गई। उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी शहजादी अनादिया के चेहरे पर पड़ने लगी और शहजादी अनादिया को यूं महसूस हुआ जैसे उस रोशनी की वजह से उसका सारा जिस्म मफलूज होता जा रहा है। उसने घबरा कर हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे उसके हलक में ही फंस कर रह गई हो। खोपड़ी की आंखों से निकलने वाली रोशनी जो जो शहजादी के बदन पर पड़ती जा रही थी, शहजादी अनादिया पर गनुदगी सी तारी होती जा रही थी, यहाँ तक कि शहजादी अनादिया की आंखें बंद हो गईं और वो तकिए से टेक लगाकर पलंग पर यूं बैठ गई जैसे बैठे बैठे उसे नींद आ गई हो। ठीक उसी लम्हे वहां एक कड़ाका हुआ और कमरे में वही बेहंगम बालों वाला खौफनाक इंसान नमूदार हुआ। उसी खौफनाक निगाहें शहजादी अनादिया पर जमी हुई थी। उसके मुंह से तेज गुर्राने की आवाज निकल रही थी। वो निहायत खौफनाक नजरों से शहजादी अनादिया की जानिब देख रहा था। चंद लम्हों तक वो शहजादी की जानिब देखता रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शहजादी की जानिब बढ़ने लगा। जो जो वो शहजादी की जानिब बढ़ रहा था, शहजादी के बाल उड़ने लगे। ये देखकर खौफनाक बालों वाला इंसान अपनी जगह रुक गया। उसने दोनों हाथ फैलाकर शहजादी अनादिया के जानिब किए, साथ ही उसने अपना एक हाथ जोर से झटका। उसके हाथ झटकने से शहजादी अनादिया को भी एक जोरदार झटका लगा। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें जो ही उस खौफनाक इंसान पर पड़ी, बेख्तियार उसके मुंह से चीखें निकल गई और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। खबरदार, अपना मुंह बंद करो। अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक लम्हे में जलाकर खाक बना दूंगा। खामोश हो जाओ। उस खौफनाक इंसान ने शहजादी अनादिया की जानिब देखकर इंतहाई गरजदार लहजे में कहा। उसकी गरजदार आवाज सुनकर शहजादी अनादिया की चीख जैसे उसके हलक में ही फंस कर रह गई हो। वो निहायत खौफजीदा और फटी फटी निगाहों से उस खौफनाक इंसान की जानिब देखने लगी। उसके पलंग के आयन ऊपर खोपड़ियां बदसतूर रक्स कर रही थी। उनके मुंह से चुरचुर की आवाज बदसतूर खारिज हो रही थी। जो खोपड़ी शहजादी अनादिया पर रोशनी फेंक रही थी, वो भी निहायत तेजी से घूमती हुई उसके सर पर चकरा रही थी। कौन हो तुम? शहजादी अनादिया ने उस खौफनाक बालों वाले इंसान की जानिब देखकर इंतहाई दहशत ज़दा लहजे में पूछा। मेरा नाम शहजादा सागाम है लड़की, और मैं कोई इंसान नहीं, भूत हूँ। खौफनाक बालों वाले इंसान ने जवाब देते हुए कहा। भूत? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शहजादी अनादिया ने उसका नाम सुनकर पहले से भी ज्यादा दहशत ज़दा लहजे में पूछा। जवाब में भूत शहजादी ने एक जोरदार कहका लगाया। उसके कहके इस कदर खौफनाक थे कि शहजादी अनादिया को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। नादान लड़की, तुम कुछ नहीं जानती। मैं भूतों का शहजादा हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 1800 बरस है और भूतों के सरदार के हुक्म के मुताबिक मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है। उन्होंने मुझे बताया था कि 1800 बरस बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, मगर मैं अभी मरना नहीं चाहता, इसलिए कि दूसरे भूतों की उम्र हजारों बरस होती है और वो कई कई हजार बरस जीते हैं। फिर मैं इतनी जल्दी क्यों मर जाऊं? अभी तो मैंने जी भर के इस दुनिया को देखा भी नहीं। मैंने भूतों के सरदार से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि कोई तदबीर नहीं जिससे तुम्हारी जिंदगी बढ़ सके। जब मैंने बहुत इसरार किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी सिर्फ इस सूरत में बढ़ सकती है कि कोई आदमजात लड़की खुद मुझसे शादी करने पर राजी हो जाए। अगर कोई आदमजात लड़की हंसी खुशी मेरे साथ शादी करे तो मेरी जिंदगी मजीद 1 साल बढ़ सकती है। मैं भूतों के सरदार की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उनसे इजाज़त लेकर फौरन तुम्हारी दुनिया में आ गए। तुम्हारी दुनिया में बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं, मगर तुम मुझे बहुत खूबसूरत मालूम हुई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मैं कई बार तुम्हारे ख्वाबगाह में आया। उससे पहले कि मैं तुम्हें पकड़ता, तुम्हारे बाल मेरे आने की वजह से उड़ने लगते और जो ही तुम्हारे बाल उड़ते मुझे एक जोरदार झटका लगता और मैं मजबूरन चीखता चिल्लाता हुआ
वापस चला जाता। न जाने तुम्हारे बालों में ऐसी कौन सी खास बात थी कि मैं तुम्हारे करीब आ ही नहीं सकता था। मैंने सामरी जादूगर से चंद तिलस्मी खोपड़ियां हासिल की और उन्हें लेकर तुम्हारी ख्वाबगाह में आया। उनकी आंखों से रोशनियां निकलती। मैं चाहता था कि आगनमा रोशनी तुम्हारे बदन को मफलूज कर दे और तुम्हारे बाल जला दे, मगर मेरी तिलस्मी खोपड़ियां भी मेरे काम ना आ सकी। न जाने तुम पर इनका तिलस्म भी क्यों असरअंदाज नहीं होता था। उल्टा जब मैं और तिलस्मी खोपड़ियां तुम्हारी ख्वाबगाह से वापस जाते तो तुम्हारे बालों में मौजूद पुरस्कार कुव्वत एक तिलस्मी खोपड़ी को जला देती। मुझे तुम पर शदीद गुस्सा आ रहा था। गुस्से में मैंने तुम्हें कई बार हलाक करने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। इस वक्त भी मैंने एक तिलस्मी पंजे की मदद से बड़ी मुश्किलों से तुम्हें यहाँ बुलवाया है। मुझे बताओ लड़की, आखिर तुम्हारे बालों में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें तुम्हारे करीब आने से रोक रही है, और तुम पर हमारा कोई सेहर असरअंदाज क्यों नहीं होता। खौफनाक बालों वाला भूत शहजादा कहता चला गया। उसके लहजे में शदीद उलझन और परेशानी थी। उससे कबल के शहजादी अनादिया उसकी बात का कोई जवाब देती। यखलख्त भूत शहजादे के करीब एक स्याह रंग का पुतला नमूदार था। पुतले की शक्ल किसी ज्यों से मिलती जुलती थी। उसका बदन हवा भरे गुब्बारे की मानिंद फैला हुआ था। ओ भूतों के तिलस्मी पुतले, तुम और यहाँ। भूत शहजादा पुतले को देखकर जोर से चौंका। उसके अंदाज में तशवीश थी। हाँ, मुझे भूतों के सरदार ने खास तौर पर तुम्हारे पास भेजा है शहजादा सागाम। सरदार ने हुक्म दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी तमाम तिलस्मी कुव्वतें उनके कदमों में डाल दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने में सिर्फ 5 रोज बाकी रह गए हैं। अगर तुमने 3 दिनों में अपनी तिलस्मी कुव्वतें उनके कदमों में न डाली तो वो तुम पर सख्त नाराज होंगे, तो वो तुम्हें सख्त सजा देंगे और मरने के बाद तुम हमेशा सुर्ख आग में जलते रहोगे। तुम जानते हो कि सरदार की सुर्ख आग किस कदर खौफनाक है। इसलिए मेरा मशूरा मानो और अभी और इसी वक्त जाकर अपनी सारी तिलस्मी कुव्वत सरदार के कदमों में डाल दो। पुतले ने भूत शहजादे को मशूरा देने वाले अंदाज में कहा। हो न हो, मगर भूत सरदार ने खुद ही मुझे इजाजत दे रखी है कि अगर मैं किसी आदमजात लड़की से तो मेरी जिंदगी बढ़ सकती है। भूत शहजादे ने कदरे परेशान लहजे में कहा। मगर कौन आदमजात लड़की तुमसे शादी करने पर रजामंद होगी। भूत सरदार का हुक्म है कि लड़की खुद राजी होगी तभी तुम उससे शादी कर सकोगे, वरना नहीं। और शादी करने से कबल तुम्हें लड़की को अपने मुतालिक हर बात बताना होगी, और यह भी बताना होगा कि शादी के ठीक तीसरे रोज तुम उस लड़की को सरदार के कदमों में कुर्बान कर दोगे। क्या लड़की ये सुनकर तुमसे शादी करने पर मान जाएगी। भूतों के सरदार के तिलस्मी पुतले ने कहा। अचानक उसकी निगाह पलंग पर बैठी हुई शहजादी अनादिया पर पड़ी। वो बुरी तरह से चौंक उठा। ये लड़की कौन है। उसने हैरत और खौफ भरी निगाहों से शहजादी अनादिया की जानिब देखते हुए शहजादे से पूछा। ये मुल्क सारान की शहजादी है। मैं उसे अपने साथ शादी करने के लिए लाया हूँ। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? और तुम इस लड़की को देखकर इस कदर खौफज़दा क्यों हो रहे हो? भूत शहजादे ने हैरत से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। ओ ये आदमजात लड़की, इस लड़की के सर पर तो आकाश बाबा का साया है। पुतले ने इंतहाई खौफज़दा लहजे में कहा। उसकी निगाहें बदसतूर शहजादी अनादिया पर जमी हुई थी, जो पलंग पर यूं बैठी थी जैसे पत्थर का बुत हो। आकाश बाबा? ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? आकाश बाबा तो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं, खास तौर पर मेरे, क्योंकि वो मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक और जालिम तरीन भूत समझते हैं। उसमें भला जुल्म की क्या बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी बढ़ाने और हमेशा जवान रहने के लिए 2-4 इंसानों को हलाक करके उनका खून पी जाता हूँ। उसका मतलब है कि शहजादी अनादिया के सर के बालों में जो कुव्वत पोशीदा है वो आकाश बाबा ही की बदौलत है। इसलिए मैं शहजादी के करीब न जा पाता था। और तिलस्मी पुतले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे ये बात बताकर मेरी मुश्किल ही हल कर दी। हो ना हो आकाश बाबा, भूत शहजादे के मुंह से गुराहट भरे लहजे में निकला। उसकी आंखें यखलख्त खून की मानिंद सुर्ख हो गई। उसने अचानक दोनों हाथ फैलाकर शहजादी अनादिया की जानिब जोर से झटके। एक धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे शहजादी अनादिया फौलादी जंजीरों में जकड़ी गई। तिलस्मी खोपड़ियों, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम शहजादी अनादिया की निगरानी करोगी। अगर उसने फरार होने या कहीं जाने की कोशिश की तो तुम उस पर अपनी सबसे खतरनाक सूरज रोशनी फेंक देना। यह ठीक है, आकाश बाबा के साए की वजह से यह हलाक ना होगी, पर उसका सारा जिस्म जलकर स्याह हो जाएगा और ये सारी उम्र बुरी तरह से चीखती और तड़पती रहेगी। भूत शहजादे ने खुरख्वार लहजे में कहा। उसने दोनों हाथ फिजा में ले रहा और फौरन अपनी जगह से गायब हो गया। भूतों का शहजादा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? ये भूतों का शहजादा कौन है? शहजादा कामरान हैरत भरी निगाहों से आकाश बाबा की जानिब देखते हुए हैरान लहजे में पूछा। शहजादा कामरान असल में शिकार के घर से एक जंगल में आया था। एक खूबसूरत हिरन का पीछा करते हुए वो अपने साथियों से बिछड़ गया था। रात सर पर आ रही थी और शहजादा कामरान जानता था कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और उस जंगल में खतरनाक दरिंदों के अलावा जहरीले जानवरों की भी भरमार है। इसलिए वो रात आने से पहले ही
उस जंगल में से निकल जाना चाहता था, मगर वो रास्ता भटक गया और कोशिश के बावजूद अपने साथियों तक न पहुंच सका। फिर उसे इस जंगल के सिरे पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो फौरन उस झोपड़ी के पास आ गया। उसने झोपड़ी में दाखिल होकर देखा तो वहाँ एक पुरूर चेहरे वाला बुजुर्ग चटाई पर बैठे याद इलाही में मसरूफ था। शहजादा कामरान जब झोपड़ी में दाखिल हुआ तो बुजुर्ग बाबा ने आंखें खोल दी। उन्हें आंखें खोलते देखकर शहजादा कामरान ने उन्हें निहायत मौदबाना लहजे में सलाम किया। बुजुर्ग बाबा ने उसके सलाम का जवाब देते हुए उसे अंदर आने को कहा। शहजादा कामरान जल्दी से झोपड़ी में आ गया। बुजुर्ग बाबा ने शहजादे कामरान को खाने के लिए चंद फल दिए। सुबह से वाकई शहजादा कामरान बेहद भूखा प्यासा था। फल खाकर उसने अपने पेट की आग बुझाई। बाबा जी, इस खतरनाक जंगल में तन्हा रहते हैं, आपको जंगली जानवरों और दरिंदों से डर नहीं लगता? फल खाने के बाद शहजादा कामरान ने बुजुर्ग बाबा से मुखातिब होकर पूछा। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग बाबा मुस्कुरा दिए। अल्लाह वाले सिवाय अल्लाह के और किसी से हरगिज नहीं डरते बेटा। इस जंगल का कोई जानवर मुझे कुछ नहीं कहता। ओह, वो तो ठीक है बाबा जी, मैं असल में अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। मैं इस जंगल में नहीं रह सकता। जंगल के जहरीले और खूंखार जानवर आपको यकीनन कुछ नहीं कहते होंगे, मगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे वो फौरन हड़प कर जाएंगे। बाबा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे मेरे साथियों तक पहुंचा दें? आप अल्लाह वाले हैं, आपको तो इल्म होगा कि मेरे साथी कहाँ हैं। असल में मैं अभी कंवारा हूँ और मैं अभी मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया तो मेरी होने वाली बीवी वक्त से पहले ही बेवा हो जाएगी। आप नेक इंसान हैं, आप यकीनन नहीं चाहेंगे कि मेरी होने वाली बीवी वक्त से पहले बेवा हो जाए। शहजादा कामरान ने बुजुर्ग बाबा की जानिब मिस्किन सी सूरत बनाकर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें वापस तुम्हारे साथियों तक पहुंचाना होता तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाता क्यों? बुजुर्ग बाबा ने उसकी जानिब देखकर संजीदगी से कहा, और शहजादा कामरान उनकी बात सुनकर चौंक पड़ा। हैरान मत हो शहजादे, मैंने ही तुम्हें रास्ते से भटकाया था ताकि तुम अपने साथियों से बिछड़कर मेरे पास पहुंच सको, क्योंकि मुझे और एक इंसान को तुम्हारी अशद ज़रूरत है। तुम ही वो इंसान हो जो शहजादी अनाजिया की मदद कर सकते हो। अगर ये किसी और के बस की बात होती तो मैं उसे अपने पास बुला लेता, बुजुर्ग बाबा ने संजीदगी से कहा। और शहजादा कामरान हैरान हैरान नजरों से उनकी जानिब तकने लगा। मैं समझा नहीं बाबा जी, आप क्या फरमा रहे हैं? शहजादा कामरान ने हैरान नजरों से बुजुर्ग बाबा की जानिब देखते हुए पूछा। असल में बेटा, भूतों का शहजादा शहजादा सागाम मुल्क सारान की शहजादी अनादिया को उठाकर अपने साथ ले गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर भूतों के शहजादे को हलाक कर दो और उसकी कैद से शहजादी अनादिया को छुड़ा लाओ। बुजुर्ग बाबा ने शहजादे कामरान की जानिब देखते हुए कहा। भूतों का शहजादा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा जी, ये भूतों का शहजादा कौन है? शहजादा कामरान ने हैरत भरे अंदाज में बुजुर्ग बाबा की जानिब देखते हुए पूछा। एक निहायत जालिम और इंतहाई हद तंग दिल और संग दिल मखलूक है वो। इंसान पर रहम खाना उसने सीखा ही नहीं। वो अपनी भूख प्यास इंसानों के खून और गोश्त से बुझाता है। उसे अपनी ताकत और जिस्मी कुव्वतों पर बेहद नाज है। वो समझता है कि उसका दुनिया में मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। वो जो चाहे जहाँ चाहे अपनी मनमानी कर सकता है। मुझे गैबी इल्म ने बताया था कि उस बदबख्त भूत की उम्र चंद बरस बाद खत्म होने वाली है और उसकी हलाकत एक इंसान के हाथों लिखी जा चुकी है। इस बात का सागाम को भी इल्म था। उसने अपने सरदार से मालूम किया तो उसने उसे मशवरा दिया था कि वो किसी खूबसूरत तरीन इंसानी लड़की से शादी करे और शादी के तीसरे रोज उस लड़की की गर्दन काट कर उसका खून उसके कदमों में चढ़ाएगा तो उसकी उम्र 1000 साल तक बढ़ जाएगी। मुझे जब उनके अज़ाइम का इल्म हुआ तो मेरी निगाह शहजादी अनादिया पर पड़ी। मैं जानता था कि सागाम का शिकार बनने वाली कोई और लड़की नहीं, शहजादी अनादिया ही है। चुनांचे मैंने फौरन उस पर पाक कलाम का साया कर दिया। सागाम ने शहजादी अनादिया को अपने साथ ले जाने की बेहद कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सका। शहजादी के सर पर मैंने चूँकि पाक कलाम का साया कर रखा था, इसलिए सागाम का उस पर कोई सेहर न चल सका और उसे वहाँ से भाग जाने पर ही पन पड़ी। जब उसे इल्म हुआ कि शहजादी अनादिया के सर पर कोई पुरस्कार कुव्वत मौजूद है जो उसे उसके करीब आने से रोकती है, तो उसने तिलस्मी खोपड़ियों के जरिए शहजादी अनादिया के सर के बालों को चराने की कोशिश की, मगर वो फिर भी कामयाब न हो सका। तुम जानते हो बेटा कि पाक कलाम की मौजूदगी में दुनिया का कोई जादू, कोई सेहर असरअंदाज नहीं हो सकता। यही वजह थी कि सागाम को हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। मगर एक रोज़ मेरी गफलत की वजह से उसका दाव चल गया और वो शहजादी अनादिया को उठाकर ले जाने में कामयाब हो गया। जब सागाम शहजादी अनादिया को उठाकर ले गया तो मुझे इस बात का इज़्ज़त दुख हुआ। मैंने फ़ौरन अपने इल्म से मालूम किया तो तुम मुझे इस जंगल में दिखाई दिए। मुझे मेरे इल्म ने बताया था कि भूतों के शहजादे यानी सागाम की मौत तुम्हारे हाथों ही लिखी है। मैंने फ़ौरन तुम्हें अपने पास बुला लिया। अब तुम बताओ बेटा, क्या तुम इस नेक काम में आगे बढ़ना पसंद करोगे? क्या एक खबीस और जालिम भूत के जुल्म से
ایک معصوم اور نیک شہزادی کو بچانے کی کوشش کرو گے، میں تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تم خوش دلی سے اس کام کو کرنا پسند کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو تمہارے لیے واپسی کے راستے کھلے ہیں۔ تم چاہو تو میں نہ صرف تمہارے ساتھیوں سے تمہیں ملوا سکتا ہوں، بلکہ میں تمہیں تمہارے وطن بھی پلک جھپکنے میں پہنچا سکتا ہوں، بزرگ بابا نے کہا، اور شہزادہ کامران کی جانب غور سے دیکھنے لگا۔ نہیں بابا، میں نہ اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے واپس اپنے وطن جانا ہے۔ انسان کا فرض ہے اگر وہ کسی دوسرے انسان کو مصیبت میں دیکھے تو وہ اس کی ہر ممکن مدد کرے، اور اگر اتنی بڑی نیکی میرے حصے میں آ رہی ہے تو میں اس سے کیوں اپنا دامن چھڑواؤں؟ بابا جی، میں یہ نیک کام ضرور کروں گا۔ آپ مجھے اس شیطان بھوت ساگام کا پتہ بتائیں، میں اس سے ضرور لڑوں گا، شہزادہ کامران پرعزم لہجے میں بولا۔ اوہ، بہت خوب، بہت خوب، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ تم واقعی ایک نہایت ذہین اور باہمت نوجوان ہو۔ انسانیت کی خدمت کرنا واقعی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ بہرحال تم ابھی اور اسی وقت ساگام کی جانب روانہ ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ وہ شیطان ایک نہایت خطرناک جادوئی عمل کر رہا ہے تاکہ کسی طرح وہ شہزادی انادیہ پر سے میرا کلام پاک کا اثر توڑ سکے۔ بیٹا، گو ساگام ایک نہایت طاقتور اور خطرناک بھوت ہے۔ اس کے پاس طاقت کے ساتھ ساتھ بے پناہ تجسمی قوتیں ہیں۔ اس پر قابو پانا آسان نہیں، نہایت مشکل بھی ہے، مگر تم اگر ہمت اور جرات مندی سے کام لوگے تو تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور پھر میں ہر ممکن تمہاری مدد کروں گا۔ بھوتوں کے اس شہزادے ساگام کی طاقت کا راز اصل میں اس کے بالوں میں ہے۔ تم کسی طرح اس کے بالوں کو جلا دو تو اس کی تجسمی قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح وہ تمہیں اپنے کسی جسمی حربے سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہاں، البتہ اس کے جسم میں کئی ہاتھیوں کی طاقت ہے، اس سے تمہیں خود لڑنا ہوگا، بزرگ بابا نے کہا، اور پھر وہ شہزادہ کامران کو ساگام کی ہلاکت اور اس تک پہنچنے کے طریقے کے بارے میں بتلانے لگا۔ آخر میں انہوں نے شہزادے کو ایک تلوار اور ایک اڑن قالین اور ایک انگوٹھی دیتے ہوئے کہا کہ تلوار کی مدد سے وہ ساگام کی طلسمی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اڑن قالین اسے اس کے محل تک پہنچا دے گا، اور اس انگوٹھی کی بدولت اس پر ساگام کا کوئی چہرہ اثر انداز نہ ہوگا، اور اگر اس انگوٹھی کو وہ ساگام کے بالوں سے چھو دے گا تو ساگام کے بال خود بخود جل جائیں گے، اور اس طرح اس کی جادوئی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ بزرگ بابا کی ہدایت کو شہزادہ کامران نے نہایت توجہ اور غور سے سنا، اور پھر وہ بزرگ بابا کی دی ہوئی چیزیں لے کر انہیں سلام کر کے جھوپڑی سے باہر آ گیا۔ جھوپڑی سے باہر آ کر اس نے اپنی تلوار نکال کر باہر پھینک دی اور بزرگ بابا کی دی ہوئی تلوار اپنے میان میں ڈال دی۔ انگوٹھی اس نے بزرگ بابا کی ہدایت کے مطابق اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں پہن لی، اور پھر اس نے اللہ کا نام لے کر قالین کو زمین پر بچھا دیا۔ قالین زمین پر بچھا کر اس نے قالین کو اڑنے کا حکم دیا۔ اس کا حکم سنتے ہی قالین آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہونے لگا، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی بلندی پر آ گیا، اور پھر وہ ایک جانب نہایت تیزی سے اڑنے لگا۔ شہزادہ کامران کو ہوائی قالین پر سفر کرتے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ قالین انتہائی برق رفتاری سے ایک جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ شہزادہ کامران نیچے جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ نیچے اسے ہر چیز بہت چھوٹی چھوٹی اور دھندلی دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادہ کامران خوف کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ نیچے گر جائے تو اس کا کیا حشر ہو۔ قالین کافی دیر تک اڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑی پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ دور تا حد نگاہ تک پہاڑی پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ پہاڑی علاقے میں پہنچ کر قالین کی رفتار ہلکی ہو گئی، اور پھر قالین اس پہاڑی علاقے میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ قالین نیچے اترتا دیکھ کر شہزادہ کامران ہوشیار ہو گیا۔ بزرگ بابا کی ہدایت کے مطابق اس نے جلدی سے میان سے ان کی دی ہوئی تلوار باہر نکال لی، کیونکہ بزرگ بابا نے اسے بتایا تھا کہ جو ہی وہ بھوتوں کے شہزادے کی وادی میں داخل ہوگا، ساگام کی دلچسپی بلائیں اس پر اچانک حملہ آور ہو سکتی ہے۔ شہزادہ کامران چوکنا ہو کر اور تلوار سونت کر قالین پر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی قالین زمین پر اترا، عین اسی وقت چر چر کی تیز آواز سنائی دی۔ شہزادہ کامران نے چوک کر دیکھا، اس کے سر کے عین اوپر 5 نیلے رنگ کی انسانی کھوپڑیاں تیزی سے گردش کرتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی تیز روشنی خارج ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے گھومتی ہوئی شہزادے کی جانب آئیں اور ایک قطار میں فضا میں معلق ہو کر شہزادے کامران پر روشنی پھینکنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے شہزادہ کامران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ شہزادہ کامران کے منہ سے ایک لمحے کے لیے چیخ نکل گئی۔ اس نے تیزی سے اچھل کر تلوار گھما کر پوری قوت سے ایک کھوپڑی پر ماری۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا، دوسرے ہی لمحے کھوپڑی ایک دھماکے سے پھٹ کر فضا میں بکھر گئی۔ یہ دیکھ کر دوسری کھوپڑیاں تیزی سے گردش میں آئیں اور انتہائی تیز رفتاری سے شہزادے پر جھپٹی، مگر شہزادہ کامران پہلے ہی سے ہوشیار تھا۔ اس نے جلدی سے ایک طرف چھلانگ لگا کر جان بچائی، اور پھر مڑ کر اس نے تلوار دوسری کھوپڑی پر دے ماری۔ اس کھوپڑی کا بھی پہلے والی کھوپڑی جیسا حال ہوا۔ اپنی 2 ساتھی کھوپڑیوں کو تباہ ہوتے دیکھ کر دوسری کھوپڑیوں کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی، اور ان کے منہ سے نکلنے والی چر چرانے کی آواز
गुर्राहट में बदल गई। वो निहायत खौफनाक अंदाज में शहजादे पर हमला कर रही थी, मगर शहजादा कामरान निहायत बर्क गिरफ्तारी और निहायत होशियारी से उनसे अपना बचाव कर रहा था। वो जानता था अगर उनमें से एक खोपड़ी भी उसके जिस्म के साथ छू गई तो उसका जिस्म एक लम्हे में राख का ढेर बन जाएगा। ये बात भी उसे बुजुर्ग बाबा ने बतलाई थी। चंद ही लम्हों में शहजादा कामरान ने उन 5 खौफनाक खोपड़ियों के टुकड़े फिजा में बिखेर कर रख दिए। उन खोपड़ियों को तबाह करके शहजादा कामरान यूं गहरे गहरे सांस लेने लगा जैसे वो बुरी तरह से थक गया हो। उसने आगे बढ़कर कालीन को जमीन से उठा लिया। जो ही उसने कालीन को उठाया, कालीन आप ही आप सिकुड़ कर एक छोटा सा रुमाल बन गया। शहजादा कामरान ने रुमाल जल्दी से जेब में डाल लिया। शाबाश शहजादे, इसी तरह हिम्मत और जुरातमंदी का मुजाहरा करते रहो, कामयाबी यकीनन तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम मेरी दूसरी हिदायत पर अमल करो। आंखें बंद करके सामने वाले बड़े पहाड़ की जानिब बढ़ो। जहां ठोकर लगे फौरन उस जगह जमीन को खोद डालो। उसमें से सुर्ख सांप निकल कर बाहर आ जाएगा। तुम उस सांप के आगे मेरी दी हुई अंगूठी डाल देना। सुर्ख सांप तुम्हें भूत महल में पहुंचा देगा। खबरदार, जब तक सुर्ख सांप तुम्हें हुक्म न दे उस वक्त तक तुम अपनी आंखें बंद रखोगे। अगर तुमने उस तमाम अरसे में आंखें खोली तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। बुजुर्ग बाबा की आवाज़ शहजादा कामरान की समाज से टकराई और शहजादा कामरान ने सारे हिलाकर आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता सामने की जानिब कदम उठाने लगा। चंद कदम चलने के बाद उसे ठोकर लगी और वो बमुश्किल गिरते गिरते संभला। शहजादा कामरान जल्दी से उस जगह जमीन पर बैठ गया और तलवार के नोक से जमीन को रगड़ने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसे तेज और खौफनाक फुंकार सुनाई दी। शहजादा कामरान फुंकार सुनकर बुरी तरह से उछलकर कई फुट पीछे हट गया। उसने बौखलाहट में आंखें खोलना चाही, मगर उसे फौरन बुजुर्ग बाबा की हिदायत याद आ गई। उसने जल्दी से आंखों को मजबूती से फेंच लिया। कौन हो तुम आदमजाद? तुमने आकाश बाबा की तलवार से जमीन खोदकर मुझे यानी सुर्ख सांप को जमीन से बाहर क्यों बुलवाया है? उसकी समात में फुंकारती हुई बारीक मगर निहायत खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। शहजादा कामरान ने जल्दी से अपनी अंगुली से बाबा की अंगूठी उतारी और उस तरफ उछाल दी जिस तरफ से उस सांप के फुंकारने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ओह, सब्ज रंग वाली अंगूठी, इसका मतलब है आकाश बाबा के हुक्म से तुम भूतों के शहजादे के महल में जाना चाहते हो। ठीक है, भूत शहजादे का महल चूंकि ज़मीन की तह में है, इसलिए वहाँ तुम्हें मेरे सिवा और कोई नहीं पहुँचा सकता। और नौजवान, मेरे करीब आ जाओ और मुझ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें भूत महल में लिए चलता हूँ। सुर्ख सांप की चौंकनी हुई आवाज़ सुनाई दी और शहजादा कामरान आंखें बंद किए आगे बढ़ा और फिर वो एक ऊंट नमा बहुत बड़े सांप की पुश्त पर सवार हो गया। सांप का जिस्म बेहद चिकना और नरम था। उसके जिस्म पर चूंकि बाल नहीं थे, इसलिए शहजादा कामरान उसके जिस्म पर जूं की मानिद चिमट गया। उसी वक्त सांप न जाने किस तरफ मुड़ा और फिर शहजादा कामरान को यूं महसूस हुआ जैसे सांप पत्थरों को रौंदता हुआ निहायत परक गिरफ्तारी से किसी जानिब रेंगता जा रहा हो। कई बार शहजादे का जी चाहा कि वो आंखें खोलकर सुर्ख सांप को देखे या देखे कि सांप उसे किस रास्ते पर ले जा रहा है, मगर फिर आंखें अंधी होने के डर से उसने आंखें न खोली। काफ़ी देर बाद सांप की रफ्तार धीमी हुई और फिर सांप रुक गया। आदमजाद, मेरी पुश्त से उतरो और इसी तरह आंखें बंद किए नाक की सीधी में आगे बढ़ जाओ। 40 कदम चलने के बाद आंखें खोलना तो तुम खुद को भूत महल में मौजूद पाओगे। अब तुम अपना हाथ आगे बढ़ाकर आकाश बाबा की अंगूठी वापस ले लो, यह तुम्हारे बेहद काम आएगी। सांप की तेज आवाज़ शहजादे को सुनाई दी और शहजादा कामरान सांप पर से उतर आया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसकी हथेली पर अंगूठी आ गई। शहजादे ने जल्दी से अंगूठी अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली में पहन ली और सांप की हिदायत के मुताबिक नाक की सीध में कदम उठाने लगा। 40 कदम चलने के बाद उसने झट से आंखें खोल दी और फिर ये देखकर वो हैरान रह गया कि वो एक निहायत हेबतनाक और खौफनाक स्याह रंग के महल में खड़ा था। महल की हर दीवार पर बड़ी बड़ी और खौफनाक शक्लें बनी हुई थी और जगह जगह भयानक बुत मौजूद थे। शहजादा कामरान उन शक्लों और भयानक बुतों को देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया। शहजादा, जल्दी से इन बुतों को तोड़ दो। भूतों के शहजादे को तुम्हारी आमद की इतला मिल गई है। वो अगर यहाँ आ गया तो वो इन बुतों में जान डाल देगा और तुम 1000 कोशिश के बावजूद इन जिंदा बुतों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, जबकि ये बुत तुम्हें चंद लम्हों में हलाक कर देंगे। बुजुर्ग बाबा की तेज आवाज़ शहजादा कामरान की समात से टकराई और शहजादा कामरान घबरा कर तेजी से आगे बढ़ा और बुजुर्ग बाबा की तलवार मार मार कर उन बुतों को तोड़ने लगा। जो ही शहजादे ने आखिरी बुत तोड़ा, अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और दूसरे ही लम्हे एक निहायत भयानक शक्ल वाला और बड़े बड़े सरकंडों जैसे बालों वाला जो नमा इंसान महल की एक दीवार तोड़ता हुआ शहजादा कामरान के सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था और आंखें किसी अंगारों की मानिद देखती हुई दिखाई दे रही थी। शहजादा उस देवनमा इंसान के बड़े बड़े बाल देखकर समझ गया कि यकीनन भूतों का शहजादा सागाम है। तो तुम हो जिसे आकाश बाबा ने मेरी हलाकत के लिए भेजा है। हाँ, तुम मुझे एक मामूली सी मच्छर दिखाई दे रहे हो। मैं तुम जैसे इंसान को चुटकियों में बसल देने की ताकत रखता हूँ।
तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। अब मैं तुम्हें इस कदर भयानक मौत मारूंगा कि आकाश बाबा तुम्हारी लाश देखकर इस कदर खौफजीदा हो जाएंगे कि आइंदा वो किसी इंसान को मेरी हलाकत के लिए भेजने की कोशिश नहीं करेंगे। शहजादा सागराम ने इंतहाई गजबनाक अंदाज में शहजादा कामरान से मुखातिब होकर कहा, मौत मेरी नहीं तुम्हारी होगी अहमक शहजादे। तुमने जो अपने सर पर परिंदों का घोंसला बना रखा है उसमें परिंदे अंडे नहीं देंगे बल्कि बीठे करेंगे। वैसे शक्लो सूरत से तो तुम मुझे गधों के शहजादे दिखाई दे रहे हो। ख्वामखा तुम जैसे गधों को भूतों ने अपना शहजादा बना लिया है। शहजादे तो मुझ जैसे होते हैं। देखो मैं किस कदर खूबसूरत, दराज कद और ताकतवर हूँ। तुम कहते हो कि तुम मुझे किसी मच्छर की तरह चुटकुलियों में मसल देने की ताकत रखते हो और मैं चाहूँ तो एक हल्की सी फूंक मारूं तो तुम किसी मुर्दा मक्खी की तरह दीवार पर लगे जाले के साथ चिमट जाओ। ओ फूंक मार कर दिखाऊं? शहजादा कामरान ने मस्करेपन से उसकी जानिब देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सागाम का चेहरा गुस्से से बिगड़ कर स्याह हो गया। तुम सागाम के सामने उसका मजाक उड़ाओ। तुम्हारी ये जुरात, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सागाम ने गुस्से में चीखते हुए कहा और उसने तेजी से दोनों हाथ फिजा में घुमाए। उसके दोनों हाथों में लंबी लंबी तलवारें आ गई और वो बुरी तरह चीखता हुआ शहजादा कामरान पर पल पड़ा। शहजादा कामरान ने उसका वार अपनी तलवार पर रोका। सागाम की तलवारें शहजादा कामरान की तलवार से टकराईं। एक जोरदार कड़ाका हुआ और सागाम की दोनों तलवारें भी जलकर उसके हाथ में राख बन गई। यह देखकर सागाम ठटक गया। उसने एक बार फिर हाथ घुमाकर तलवारें हासिल की और शहजादे पर हमलावर हुआ और उसकी दोनों तलवारें फिर शहजादे की तलवारों से टकरा कर राख बन गई। अब तो सागाम के गुस्से की कोई इंतहा न रही। उसने खौफनाक नजरों से शहजादा कामरान की जानिब देखकर मुंह खोला। उसके मुंह से आग के शोले निकलने लगे। घबराना नहीं शहजादे, सागाम का कोई तिलस्मी वार तुम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। तुम जल्दी से उसके बालों के साथ मेरी दी हुई अंगूठी छूकर उसके बालों को जला दो। उसकी तिलस्मी ताकत खत्म हो जाएगी और फिर तुम उसे मार देना। बुजुर्ग बाबा की सरगोशी शहजादा कामरान की समात से टकराई। शहजादा कामरान ने इस बात में सर हिलाकर उंगली से अंगूठी उतारकर हाथ में पकड़ ली। सागाम के मुंह से आग के शोले निकलकर शहजादे कामरान के बदन पर पड़े मगर उसका शहजादे पर कोई असर न हुआ। तब सागाम गुस्सीले अंदाज में बार बार शहजादे कामरान पर जादुई हमले करने लगा मगर शहजादा कामरान का अंगूठी की वजह से वो बार भी बेका न कर सका। शहजादा कामरान ने मौके से फायदा उठाकर बुजुर्ग बाबा की दी हुई अंगूठी सागाम के बालों में फेंक दी। सागाम को एक जोरदार झटका लगा और वो कई कदम पीछे हट गया। उसी वक्त एक शोला सा चमका और सागाम के बालों में आग लग गई। सागाम बुरी तरह सर पकड़कर चीखता चिल्लाता हुआ नाचने लगा। शहजादा कामरान आगे बढ़ा और उसने तलवार का एक भरपूर हाथ मारकर उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दी। जो ही सागाम की गर्दन उसके तन से जुदा हुई, सागाम का बदन पूरी तरह से फड़कने लगा और उसकी कटी हुई गर्दन से खून फवारे की मानिद उबरने लगा। आन उसी वक्त शहजादा कामरान के करीब आकाश बाबा नमूदार हुए। शहजादा कामरान उन्हें देखकर चौंक पड़ा। जल्दी करो शहजादे, इससे पहले कि सागाम का बदन ठंडा हो जाए, जहाँ से निकल चलो। अगर उसके जिस्म से जान निकल गई तो यहाँ भूतों की फौज आ जाएगी और तुम्हारा जिंदा रहना मुहाल हो जाएगा। जल्दी करो, तुम रुमाल निकाल कर जमीन पर बिछाओ, ओढ़न कालीन बन जाएगा, तुम उस पर बैठ जाना, कालीन तुम्हें मेरी झोंपड़ी में पहुंचा देगा। जल्दी करो शहजादे, मैं शहजादी अनादिया को लेकर आता हूँ, जल्दी करो, बुजुर्ग बाबा ने चीख कर कहा और शहजादा कामरान ने उनकी बातों पर अमल किया। उड़न कालीन पर सवार होकर जब वो बाबा की झोपड़ी में पहुंचा तो बुजुर्ग बाबा और वहां एक खूबसूरत लड़की को मौजूद पाया। शहजादा कामरान उस लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बिलाशुबा इस कदर हसीन शहजादी कहीं नहीं देखी थी। बुजुर्ग बाबा ने शहजादी और शहजादे का तारुफ कराया। शहजादी अनादिया ने शहजादे का बहुत शुक्रिया अदा किया, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर भूतों के शहजादे से उसे रिहाई दिलाई। बुजुर्ग बाबा ने उन दोनों को अपने इल्म के दौर से उनके मुल्क भेज दिया। शहजादी के वालिदैन शहजादी अनादिया को देखकर बहुत खुश हुए। शहजादा कामरान ने अपने मुल्क जाकर अपने वालिदैन से कहकर शहजादी अनादिया के वालिद से उसका रिश्ता मांगा तो उन्होंने बाखुशी उनकी बात मान ली और फिर शहजादा कामरान और शहजादी अनादिया की शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।